Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing our second chapter for physics, that is human eye and the colorful world. So हमारा पहला part जो है, I'm not part the first chapter of physics. Light reflection refraction is successfully completed. We have done NCERT questions and apart from the other questions as well. Today we are here with discussing human eye and the colorful world. इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट भी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में एंड देन इट कम्स फिजिक्स. सो दिस इज अ सेशन नंबर 1. तीन सेशन में हम डिवाइड किए चैप्टर को. सो आज हम सेशन नंबर 1 करने वाले हैं जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन आई. ठीक है, हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद दैट हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो before wasting any further more time, let us begin. Make sure to like the video, share with your friends and subscribe करो चैनल को right away. Now we know कि हमारी ह्यूमन एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है, isn't it? It's a very very amazing organ. हम लोग हर चीज़ देख सकते हैं, थोड़ी सी राइट थोड़ी सी सनशाइन में भी हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, isn't it? We can see everything around us. How am I seeing this PPT? How are you seeing the video? All because with our eyes, isn't it? Now this is a structure of the human eye. There are various parts. Okay, there are various parts. So we know that let us say this is one of my object. Now light will travel, correct? And then what all happens is the structure of human eye. So let us understand. Now, let us consider we have a candle in front of the human eye and we will follow the light of the candle. Okay, so we will follow it. So the first layer of the eye is the cornea. That is the place where the light first touches the eye. It is responsible for refraction. Most refraction occurs over here and it is transparent. गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक एट योर आइज. आपका जो वाइट वाइट कलर का पार्ट होगा उसके ऊपर एक शाइन आती है, चमक आती है. दैट इज बिकॉज ऑफ योर कॉर्निया एज वेल. उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर. नॉट लाइक एक एक्चुअली कोई ऑर्गन नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, बट इट इज़ अ लिक्विड, एक फ्लूइड है जो लेंस इसको मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता. इफ़ यू हैव एवर सीन, इफ़ यू और योर पेरेंट्स एवर वेयर लेंसेज, तो आपने देखा होगा हम उसको एक ऐसे ना कंटेनर टाइप में रखते हैं लाइक दिस, समवॉट इट लुक्स लाइक दिस, और उसके अंदर ना पानी होता है और लेंसेज होते हैं. सो सिमिलरली हमारे ह्यूमन के आई के लेंस को भी ड्राई नहीं रखते हम लोग, इससे उसको मॉइस्ट रहना पड़ता है. मॉइस्चर शुड बी देयर. So for that aqueous humor is present. Next comes iris and pupil. Iris is the control. It controls the amount of light. कितनी लाइट आइस के अंदर जाएगी, कितनी लाइट आ सकती है, कितनी लाइट नहीं आ सकती, इंटेंसिटी को. And it leaves a small opening called the pupil. Pupil is a small hole in the middle. ये वाला पार्ट जो है दैट इज ए प्यूपल. और आइरिस इज ऑल्सो नोन एज द colored part of the eye. This is the colored part. Now if you look around, you may see, if you look around, you may see that you may have black brown eyes, your parents may have black eyes, some will have blue eyes, some have green eyes. Everyone can have different eyes color, correct? Now that eye color comes due to the color of the iris. Again it's genetic. So iris is the color part. eye को color iris देता है और iris के बीच में एक small hole होता है, that is the pupil. ओके अगर ज़्यादा लाइट होती है, मोर लाइट होती है, तो आपका आइरिस एक्सपैंड हो जाता है और प्यूपल श्रिंक हो जाता है. ओके मतलब व्हेन देयर इज मोर लाइट, लाइक सडनली आप सुबह उठते हो, लाइट आपके मुंह पे आ जाए, तो क्या होगा, ये जो आइरिस है वो एक्सपैंड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट आ रही है. और ये जो बीच का होल है प्यूपल, दैट विल श्रिंक. एंड वाइस वर्सा, अगर कम लाइट है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्यूपल ग्रो कर जाएगा. ऑलराइट, नाउ कम्स द लेंस. हमारे ह्यूमन आई में भी एक लेंस होता है. वी हैव स्टडी इन द लास्ट चैप्टर के कौन से टाइप्स के होते हैं. वी हैव कॉन्वेक्स लेंस and we have concave lens, don't we? So the light, controlled amount of light अब कहाँ पे पड़ेगी, हम लोग चीज़ देखेंगे कैसे, उसके लिए रिफ्रैक्शन तो होना पड़ेगा. So that happens through our lens. So we human beings
हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आइज में कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, और ये जो लेंस है वो अपना सेंस कर्वेचर और फोकल लेंथ चेंज कर पाते हैं। हाउ? लिविंग लेंस है हमारे पास? नो, लेंस कैन नॉट बी लिविंग। हमारे पास एक ऑर्गन है थ्रू विच वी कैन change the curvature and the focal length. For example, your hand, ओके, योर हैंड। अगर आपको ये फिंगर मूव करनी है, आपका थंब मूव करना है, तो कैसे करते हो? मसल के थ्रू, राइट? सो सिमिलरली वी हैव अ मसल अटैच्ड टू द लेंस नोन एज द सिलियरी मसल्स। सो द लेंस होता है वो ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ सिलियरी मसल्स करते हैं, और इससे ही हम लोग फोकल लेंथ को बढ़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं एज पर आर नीड। हम लोग क्या देख रहे हैं, एकदम ज़्यादा लाइट का है, कम लाइट का, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट फाइनली आता है हमारी लाइट रेस आइस के अंदर आ जाती है, ओके, एक स्क्रीन पे पड़ती है, दैट इज नोन एज द रेटिना। अब लाइट आ रही है, तो वो जो इमेज फॉर्मेशन का किधर ना किधर तो होना पड़ेगा, राइट? सो रेटिना इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक स्क्रीन जैसा वो एक्ट करती है। नाउ वी नो कि कॉन्वेक्स लेंस हमको एक इन्वर्टेड इमेज देखता है। सो व्हाई डोंट वी ऑलवेज सी इन्वर्टेड इमेजेस? हमको उल्टी इमेजेस क्यों नहीं दिखती? हम तो सीधी इमेज देख सकते हैं ना। इफ आई होल्ड अ पेंसिल स्ट्रेट इट विल बी स्ट्रेट, थोड़ी ना उल्टी दिखाई दे रही है, बट ऑन द रेटिना इट इज अपसाइड डाउन। सो व्हाट्स द मैजिक हियर? There is no magic but science. These eyes are connected to something known as the optic nerves. कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, एंड दिस ऑप्टिक नर्व्स कलेक्ट विजुअल इंफॉर्मेशन। ये जो इमेज बन रही है ना, दैट इज विजुअल, एक विजुअल इंफॉर्मेशन है, तो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके वो ब्रेन को भेज देती है। तो ब्रेन अपने आप उसको सीधा कर देता है और बोलता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो। देखो, लेट अस से यू होल्ड अ पेन, अगर आपने पेन पकड़ा, सो यू नो दैट दैट इज अ पेन। हाउ? बिकॉज एज सुन एज यू सी इमेज चली जाती है, विजुअल इमेज चली जाती है, तो पता चलता है अच्छा ये ब्रेन का क्या क्या था, हाँ हमने सीखा ये पेन होता है, ओके। Next comes the power of accommodation. There is one special feature of the human eye, that is the power of accommodation. Now, we all know that when object is near or very far, we don't have to do anything. Our eyes does it, right? हम थोड़ा struggle करके कर सकते हैं। Human eye has the ability to adjust its focal length. मेजर रोल यहाँ पे हमारे सिलियरी मसल से प्ले करते हैं, बिकॉज हमारा मेन जो है लेंस का जादू है। लेंस इज ओनली हेल्प इन दी, अगर फोकल लेंथ कम ज़्यादा किसकी करेंगे? लेंस की करेंगे, और लेंस किससे कनेक्टेड होते हैं? टू द सिलियरी मसल्स। तो इट कैन फॉर्म शार्प इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर as well as far. So what is power of accommodation? The ability of the eye to adjust its focal length is called the power of accommodation. So power of accommodation क्या होता है? वो ability, the power जिससे हमारा human eye अपनी focal length as per needed change कर सके, that is the power of accommodation. Now एज आई सेड, मेन रोल कौन प्ले करता है? सिलियरी मसल्स। वो एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिस वजह से फोकल लेंथ और कर्वेचर चेंज हो जाएगा। नाउ अब फोकल लेंथ ऑफ द आईज लेंस, वो उसको हम लोग कितना भी ऐसा नहीं एकदम घटा दिया बढ़ा दिया, वी कैन नॉट डू दैट, ओके। वी ओनली एट अ सर्टन अमाउंट विद अ सर्टन लिमिट हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट सर्टन लिमिट इज नोन एज द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। सो द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जहाँ तक हम क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली विदाउट एनी आंखें ऐसे कम बड़ी करके, नो, नॉर्मली। सो दैट इज द नियर पॉइंट। एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। नाउ कम्स द टर्म नॉर्मल आई। नॉर्मल आई, स्पेशल आई क्या होती है? नॉर्मल आई होती है जिसके आईज में कोई पावर या स्पेक्स ना हो। इफ यू आर नॉट वेयरिंग स्पेक्स एंड येट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली,
That is 25 centimeter, the near point for you. But when people wear specs, उनकी focal and कम हो जाती है, बढ़ जाती है, that time the near point changes. That we are going to study ahead now. अब farther point भी होगा, नियर पॉइंट होता है। तो फार पॉइंट क्या होगा, एक नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है वो, क्योंकि आप देखो अगर आप जाओ बाहर, आप मून तक भी देख सकते हो, अगर उसे ज़्यादा हो पाता और छोटी चीज़ें नहीं होती तो हम और देख पाते। तो इन्फिनिटी, कोई भी ऐसा नहीं कि पता नहीं कहाँ से आएगी, आ सकती है, हर जगह से हम देख सकते हैं। सो टिल इन्फिनिटी। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे टू आइज क्यों है, वॉट इज द कंसेप्ट ऑफ टू आइज। तो ये समझ आ गया, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज इन्फिनिटी ओनली फॉर द नॉर्मल है। अब बात करते हैं टू आइज का। फर्स्ट होता है कि उसका व्यू एरिया बढ़ जाता है। वन आई कैन सी अराउंड 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं। बट इफ वी हैव टू आई तो एक लार्जर व्यू एंगल मिलेगा। 150 प्लस 150 कितना होगा, 0, 10, 300। तो हम 300 डिग्रीज तक देख सकते हैं, है ना, हम 300 डिग्रीज तक देख सकते हैं। एंड इट्स नॉट दैट हम लोग को ये 360 पूरा नहीं देख सकते हम, राइट, वी कैन नॉट सी एवरीथिंग, हम लोग 300 डिग्रीज तक देख सकते हैं। सो दैट इज नोन एज द stereopsis. Stereopsis is the ability to perceive वर्ल्ड अराउंड अस इन 3D में वर्ल्ड को देख पा रहे हैं ना हम, दैट इज स्टेरियोप्सिस। अब देखो लेफ्ट ब्रेन ये इतना देखता है, राइट ब्रेन इतना देखता है, तो पूरा ब्रेन, हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, तो लेफ्ट आई इतना देखता है, राइट आई उतना देखता है, सो पूरा कंबाइन होके प्रॉपरली हमको दिख जाता है। नाउ वी नो दैट ये सारी चीजें से देयर कम्स द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट इज वेरी कॉमन। आई एम मे बी आई गेस लाइक 70 or 80% of you guys who are watching this video currently would be wearing specs. So that wearing specs, wearing lenses, extra lenses are all defects of vision. So let us understand about 3 defects of vision, namely myopia, hypermetropia and presbyopia. Let us understand. Now, sometimes the lens loses the ability partially or fully. The power of accommodation is lost. ठीक है, हम लोग कर पाते बट दैट मच क्लियरली हम नहीं देख पाते। सो सम पीपल कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट्स। कोई लोग जो होते दूर के एकदम अच्छे से दिख जाए पर नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। सम पीपल आर कि उनको नज़दीक की चीज़ तो क्लियरली दिखी बट दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी। एंड एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव दिस प्रॉब्लम। आई कैन नॉट सी द थिंग्स विच आर फार अवे बट आई कैन सी थिंग्स विच आर नियर टू मी. Okay, so these are the 2 conditions and these 2 have the names as well. So this one is known as myopia. I have myopia for your information. And next one where we cannot see the near things is known as hypermetropia. Okay, look over here. So far-sightedness and near-sightedness. If you don't remember this also, it's fine, you should remember the name. So let us say कि एक ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है, इसको फार-sightedness है, मायोपिया है। नाउ क्या हो रहा है, वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पा रहे हैं बट नियर, ओके सॉरी, नाउ दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, सो फार ऑब्जेक्ट उनको दिख रहे हैं पर नियर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है अगर हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आते हैं सो एज वी मूव ऑब्जेक्ट क्लोज लेंस विल एक्सपैंड। इमेज को रेटिना पे फॉर्म करना है ना, तो लेंस एक्सपैंड हो पाएगा, सो ये पॉसिबल तो नहीं है। सो व्हेन दिस डिफेक्ट हैपेंस, लेंस है हमारे एक्सपैंड हो जाते हैं ओनली अप टू सर्टेन ऑब्जेक्ट पोजीशन, बट उससे ज़्यादा एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। सो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली इज द नियर पॉइंट फॉर दैट आई। ठीक है, जहाँ से क्लियरली दिखता है। सो यहाँ पे नॉर्मल आई के लिए तो 25 सेंटीमीटर होता है। सो एक आपके ये फार साइटेड ऑब्जेक्ट के लिए 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा नियर पॉइंट। सो अगर ये नियर पॉइंट है सो इधर तक दूर तक क्लियर विजन होगी, पर नज़दीक आएगा ऑब्जेक्ट तो ब्लर होना चालू हो जाएगा।
ओके, सो दैट इज व्हाट इज योर हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है, तो हमको कैसे दिखेगी क्लियरली, राइट? सो दिस इज योर हाइपरमेट्रोपिया। सो लेंस क्या हो रहे हैं, वो एक्सपैंड नहीं हो रहे प्रॉपरली, सो रेज विल मीट बिहाइंड द रेटिना। अब कौन सा लेंस हम यूज करें, हमको ये वापस लाना है हमारे इस पे। सो वी यूज आर ऑल इन वन कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग हमारे प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, इट्स कन्वर्जिंग। सो वी यूज आर कॉन्वेक्स लेंस। अगर वो इमेज पीछे बन रही है, सो अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्स पहन ले या कॉन्वेक्स लेंस लगा ले, सो वापस आ जाएगा हमारा रेटिना पे और हम नियर चीजें आसानी से देख पाएंगे। सो we know the eye with this defect can see near objects clearly but not the far objects clearly but not near. There is another condition जहाँ पे नज़दीक की चीज़ें तो दिख जाएगी but दूर की चीज़ें becomes a problem. So as the object moves away, eye lens shrinks but only to a certain limit. So maximum distance जहाँ पे हम clearly देख पा रहे हैं वो एक far point हो जाएगा. So यहाँ पे far point infinity से कम होता है. इफ दिस इज द फार पॉइंट, सो क्या होगा, उससे दूर चला गया, उससे और ज़्यादा हो गया तो हम ब्लर हो जाएगा। लाइक फॉर मी, आई कैन नॉट सी द फार थिंग्स क्लियरली, है ना, बिकॉज वो इन्फिनिटी मेरा फार पॉइंट कम है, इन्फिनिटी से कम है, फाइनाइट वैल्यू है वो, ठीक है। सो बट अगर जैसे ऑब्जेक्ट नियर 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 आएगा तो आई कैन easily see it. For example, I'm using a laptop now, so laptop पे I can see what is written, but if I keep this laptop very far from me, so I won't be able to see what is written. Okay, so that is your myopic eye. And the previous one जो हमने पढ़ा, this one was your hypermetropia. Okay, hypermetropia. Now इसका कैसे कर सकते हैं हम, सो आई लेंस डज नॉट श्रिंक बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। या ये बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है कि आपका जो रेटिना है वो बहुत ही नज़दीक है और एक लार्ज आईबॉल फॉर्म हो रहे, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट वी कैन यूज, वी विल यूज आर कॉनकेव लेंस। हम एक कॉनकेव लेंस, एक डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी इमेज जो है वो रेटिना पे ही फॉर्म हो। पहले में इधर बन रही थी रेटिना के बाहर और अभी रेटिना के पीछे आगे बन रही है, सो वी नीड ऑन द रेटिना ओनली, सो इसलिए हम अलग अलग लेंस यूज कर सकते हैं। मायोपिया के लिए वी विल यूज कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो एज आई सेड, फार साइटेडनेस, जहाँ आपको दूर की चीज़ें अच्छी से दिख रही है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो नियर की चीजें अच्छे से दिख रही है, दैट इज मायोपिया, एंड वी यूज कॉनकेव लेंस फॉर द सेम। अब आता है एक न्यू टर्म, दैट इज प्रेसबायोपिया। अब आई डोंट नो अबाउट यू, बट I assume that many of you might have seen your grandparents wearing such glasses, or maybe your parents as well, जहाँ पे एक ये ऊपर भी एक लेंस है और एक नीचे भी ऐसा एक लेंस है, ऊपर लेंस है नीचे भी लेंस है, टू lenses there in the same spec. What is this? So that is known as the condition where the person has presbyopia. प्रेसबायोपिया मोस्टली ओल्ड एज में ही आता है, ओके। फार साइटेडनेस ओल्ड एज में ही आते हैं क्योंकि फोकस नहीं आ पाता और आईबॉल का शेप जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है, सो सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, सो पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस, तो एक एबनॉर्मल शेप बन जाता है आईबॉल का, सो दैट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। सो कैसे यूज करेंगे, फार अभी तो हमको प्रॉब्लम है, हम दो चश्मे तो नहीं ना लेके घूम सकते, सो एक होता है कॉनकेव, ऊपर पे कॉनकेव लगाएंगे दूर के विजन के लिए और नीचे छोटा सा कॉन्वेक्स लगाएंगे नियर के लिए। सो ओल्ड एज फार साइटेडनेस या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, और इस स्पेक्टिकल का एक नाम होता है, दैट इज बायफोकल लेंस। बायफोकल मतलब हम कॉनकेव भी यूज करेंगे, कॉन्वेक्स भी यूज करेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज वी नो, क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। वी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन आई, हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्कस किया करें। वी नो दैट लाइट सबसे पहले आती है हमारे कॉर्निया पे, देन इट रीचेस द रेटिना,
Then we discussed about the defects of vision. Isn't it? We discussed about hypermetropia and myopia. And then we studied about presbyopia, which is seen in old age. And with that, we have successfully completed with today's session. So thank you so much for watching. I'll be seeing you guys in the next video where we're going to discuss some more physics amazing chapters and not chapters, amazing topics. And make sure to like this one, share with your friends and subscribe karo channel ko right away. See you soon. Till then, take care and goodbye.